السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. جو اسٹوڈینٹس آن لائن ہیں بیٹا بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے, کلیئر آ رہی ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے آواز میں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور جسٹ 6 اسٹوڈینٹس آر ہیئر. کافی ٹائم ہو گیا بیٹا جی, جلدی جلدی سے جوائن کر لیجیے تاکہ ہم کلاس اسٹارٹ کریں. اب بتائیے خوش نصیبہ, اب آواز آ رہی ہے میری؟ ہاؤ آر یو آل؟ اوکے ٹھیک ہے, گڈ, تھینک یو. بٹ بہت کم اسٹرینتھ ہے, جلدی جلدی سے آ جائیں بیٹا. اسکیجول تھوڑا سا چینج ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو یو پیپل ہیو بین کمیونیکیٹڈ اور ناٹ. اب آپ کا جو CHN کا لیکچر ہوا کرے گا منڈے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو ہوا کرے گا. منڈے اینڈ ٹیوزڈے اٹ ول بی فرام 4 to 5 اور تھرسڈے کو اٹ ول بی فرام 3 to 4. ٹھیک ہے بیٹا. نیا اسکیجول آئی تھنک آپ کے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. اوکے, کوئی بات نہیں. اصل میں بہت سڈن سے چینج آیا ہے, انفیکٹ مجھے بھی نہیں پتا تھا. کل ہی اسکیجول ہوا ہے سائن, تو آج پتہ لگا ہے. آپ 18 ہے نا, 17 کو بھی سائن ہوا ہے, سگنیچر ہوئے ہیں, تو آج پتہ لگا. میں آپ کو خود بھی بتا دیتی ہوں, 4 to 5 منڈے کو, ٹیوزڈے کو آپ کے ساتھ لیکچر ہوگا, اور تھرسڈے کو 3 to 4 CHN ہوگا. ٹھیک ہے جی, میں بتا رہی ہوں ابھی آپ کو. اور جی کچھ بتائیں گے اسٹوڈینٹس کہ کیا پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں؟ کل ہم نے کیا پڑھا CHN میں؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کیا پڑھا ہم نے کل CHN میں؟ کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے کچھ؟ اچھا, مادیہ نے ہی ہمیں آنسر کیا ہے کہ ریوائز کیا تھا. پرائمری ہیلتھ کیئر کو الماٹا کانفرنس کی ڈسکشن کی تھی, اور ایلیمنٹس پڑھے تھے. گڈ مادیہ. کس چیز کے ایلیمنٹس پڑھے تھے بیٹا؟ کس چیز کے ایلیمنٹس پڑھے تھے کل ہم نے؟ 13 اسٹوڈنٹس آر آن لائن, لیکن کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے آنسر نہیں کر رہا. جسٹ ون اسٹوڈنٹ شی از گیونگ می آنسر. بتائیے کس چیز کے ایلیمنٹس پڑھے تھے کل ہم نے؟ کوئی بہت پرانی کلاس تو نہیں ہو گئی, کل ہی کلاس لی تھی. پرائمری ہیلتھ کیئر, PHC. سنبل نے جواب دیا, مریم نے. ٹھیک ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر کے ایلیمنٹس پڑھے تھے. اچھا جی, تو کتنے ایلیمنٹس تھے پرائمری ہیلتھ کیئر کے؟ جلدی جلدی سے آ جائیں بیٹا. کتنے ایلیمنٹس پڑھے تھے پرائمری ہیلتھ کیئر کے؟ رابعہ نے بھی آنسر کیا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کے ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے کتنے ایلیمنٹس پڑھے تھے ہم نے؟ 8 ایلیمنٹس تھے. عائشہ نے آنسر دیا, رابعہ نے. گڈ. اوکے, اب ڈیٹیل میں نہ صحیح لیکن
जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स थे प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो 8 एलिमेंट्स जो थे, जो भी याद है, जिसको जो भी नाम याद है मेरे साथ शेयर कीजिए, एक एक नाम शेयर कीजिए। ठीक है मारिया, प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट्स। नाउ आई नीड नेम्स, एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके एलिमेंट्स, ये तो आप लोगों को याद होने चाहिए। सो आई नीड आंसर। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स बताइए, बेशक एक एक एलिमेंट बताएं, सारे याद नहीं हैं, एक एक बताएं, लेकिन बताने पड़ेंगे। हम देखें कि बच्चों को कितना याद रह रहा है, कितना दिल लगा के पढ़ रहे हैं, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। ओके जी, ओके। हमें किस किसने आंसर किया है? सुंबल ने बताया है फूड एंड सैनिटेशन, गुड। मरियम ने बताया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, गुड। राबिया परवीन ने आंसर किया एजुकेशन, फूड सप्लाई, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वाटर सैनिटेशन, ड्रग्स। मारिया ने आंसर किया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। खुश नसीबा ने भी फूड सैनिटेशन, फूड सप्लाई और ड्रग्स, गुड। अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को कुछ चीज़ें याद हैं। और मारिया ने इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया। ठीक है जी, चलें हम लेक्चर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद जो है हमारा लेक्चर कहाँ है जी, ये रहा हमारा लेक्चर। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो मीनवाइल अगर कुछ आंसर आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम फिर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आयशा ने आंसर किया है फर्स्ट 3 प्रोमोटिव थे, नेक्स्ट 3 प्रिवेंटिव थे एंड लास्ट 2 आर क्यूरेटिव, गुड। गुड आयशा। प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमारा सेकंड यूनिट है जो हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, किस किस कंट्री के लिए ज़रूरी है, और इसके अलावा अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस क्या थी, उसका स्लोगन क्या था, हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 बेसिकली है क्या, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स। प्राइमरी हेल्थ केयर के वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन पूरी दुनिया में हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 को अचीव करने के लिए हमें फॉलो करने होंगे, वो एलिमेंट्स जो कॉमन हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो 8 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हमने पढ़े थे। उसका एक निमोनिक आपके साथ शेयर किया था। सारी चीज़ें फिर हमने उन तमाम पॉइंट्स को, उन तमाम एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया कि हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, फूड और वाटर, सबसे पहले फूड की सप्लाई के बारे में बात हुई थी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए, देन एडिक्वेट वाटर, सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, देन फोर्थ एलिमेंट था कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर बहुत नेसेसरी है, देन इट वाज इम्यूनाइजेशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीजेस। ये पॉइंट किसी को याद नहीं आया। एंड आफ्टर दैट माइनर इंजरीज और एलिमेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, देन प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ये तमाम एलिमेंट्स हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। फिर आपको ये समझाया था हाउ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर प्रोमोटिव, हाउ द नेक्स्ट 3 आर प्रिवेंटिव एंड व्हाई द लास्ट 2 comes under services.
The concept of primary healthcare involves an effort to provide the rural population in developing countries with at least the basic minimum of health services. The list can be modified to fit local circumstances. प्राइमरी हेल्थ केयर, ये बात बार बार आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक जो मकसद था, वो तो यही था कि जो हमारे स्पेशली रूरल पॉपुलेशंस हैं, जहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पे फूड सप्लाई अच्छी नहीं है, जहाँ लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता, जहाँ लोगों की सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ लोगों की जो है फूड सप्लाई का इशू है, वाटर सप्लाई का इशू है, ऐसे एरियाज़ में बेसिकली जो है जितने भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके जो ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी रूरल कम्युनिटीज़ या रूरल पॉपुलेशंस हैं, इसमें एटलीस्ट बेसिक जो हमारी मिनिमम हेल्थ सर्विसेज है ना, जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक मिनिमम हेल्थ सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड होनी चाहिए। अब ये जो लिस्ट है कि इसमें बेसिक मिनिमम हेल्थ सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए, ये लिस्ट जो है बेटा जी, ये मॉडिफाई की जा सकती है टू फिट द लोकल सर्कमस्टांसेस ना, कि जो जाहिर है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें डिफरेंट रूरल कम्युनिटीज़ हैं, उन रूरल कम्युनिटीज़ में डिपेंड करता है, सारे रूरल कम्युनिटीज़ तो एक जैसी नहीं होती ना। इवन आप एक अपनी कंट्री की एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम सिर्फ एक कंट्री पाकिस्तान की बात करते हैं, तो एक कंट्री में ही देखिए डिफरेंट प्रोविंसेस है ना, पंजाब है, सिंध है, अगर हम पंजाब की रूरल कम्युनिटीज़ को देखें, हम सिंध की रूरल कम्युनिटीज़ को देखें, सो हमें अंदाज़ा होगा कि एक ही मुल्क की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर कितना ज़्यादा एक ही मुल्क की रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब एक ही मुल्क की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर इतना डिफरेंस हो सकता है, तो सोचिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ की कम्युनिटीज़ एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ होंगी, ठीक है ना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का यही कॉन्सेप्ट है, यही मकसद था उस अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस का, पीएचसी का, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी रूरल कंट्रीज़ में एक जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन जो उसमें कुछ लिस्ट है वो मॉडिफाई हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंट्री रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रूरल कम्युनिटी रिक्वायरमेंट, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने शेयर कर दी कि फॉर एग्जाम्पल सम कंट्रीज हैव स्पेसिफिकली इंक्लूडेड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हैंडीकैप्स, हेल्थ एंड सोशल केयर ऑफ द एल्डरली। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जहाँ पे उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ उन रूरल कम्युनिटीज़ के पास मौजूद होंगी, लेकिन उनको मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, साइकेट्रिक वार्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो लोग बिल्कुल भी, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई एजुकेशन नहीं होगी अबाउट मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ भी कितनी ज़रूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करते होंगे। तो ऐसी कम्युनिटीज़ में जाके हमें लोगों को बताना होगा कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है और मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है। इन सारी चीज़ों को हमें उन्हें बताना होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली मेंटल हेल्थ, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर ज़ाहिर है वहाँ पे हमें साइकेट्रिक वार्ड्स बनवाने होंगे, हमें वहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है उनको अवेलेबल करना होगा। इस तरह से कोई कम्युनिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जहाँ मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ तो मौजूद है, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो हम इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करें उस कम्युनिटी में जाके। इसी तरह से कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ होंगी जहाँ पे ओल्डर एज के जो लोग होंगे, एल्डरली जो पीपल होंगे, ओल्डर एज के जो लोग होंगे, उनकी जो हेल्थ या सोशल केयर के लिए वहाँ कोई काम नहीं होता होगा, लोग उनकी हेल्प के लिए कोई काम नहीं करते होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में जो है उनकी हेल्थ के लिए, एल्डर पीपल की हेल्थ के लिए और उनकी सोशल केयर के लिए जो है हम उन कम्युनिटीज़ में जाके फोकस करेंगे और काम करेंगे।
प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, जिस तरह से हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं इस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा. द मेंशन्ड 8 सर्विसेज इंडिकेटेड एज एलिमेंट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिलीवर्ड ऑन बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ. अब ये जो हमने 8 एलिमेंट्स पढ़े थे, ऑब्वियसली ये सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड करनी है तो हमने इनको ऑर्गेनाइज भी करना है पहले, और ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उन सर्विसेज को डिलीवर भी करना है. और उन्हें ऑर्गेनाइज और डिलीवर किस बेस पे करना है? प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी बेस पे करना है. इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विटी? What is equity mean? Equity क्या है? And is this equality, or does it mean equality, और ये equality और equity same चीज़ है या अलग अलग है? What do you understand by this word equity? Tell me what is equity? Equal, okay, बिन्नत रसूल, और means you want to say कि equality and equity are the same things, ये कहना चाहते हैं आप? शमीम तालिब ने भी कहा equality. Means you people want to say that equality and equity is the same thing. Okay, then what do you mean by equity in distribution? Equity in distribution का क्या मतलब होगा? ये क्या प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का, equity in distribution? अच्छा, साइमा यासीन ने आंसर किया है. मरियम जफर ने इक्विटी मीन्स डिवाइड इन सेम अमाउंट. मारिया ने जस्टिस. मारिया का आंसर भी क्लोज है. और मरियम ने कहा इक्विटी मीन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है. आपका आंसर भी वेरी क्लोज है. साइमा यासीन ने बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता बल्कि इतना दिया जाता है कि सबके लेवल इक्वल हो जाए. यू आर ऑल्सो वेरी क्लोज. इक्वल एंड इक्वलिटी आर चेंज. इक्विटी, साइमा, इक्विटी, equality and equity are change. Equal distribution of resources मारिया ने कहा है, and फातिमा distribution according to need, and खुश नसीबा equal distribute. फातिमा, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने बताए इन सब के आंसर बिल्कुल यू पीपल आर राइट. बेटा, इक्वालिटी एंड इक्विटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. इक्वालिटी या इक्वल का मतलब तो सिंपल ये होता है कि आपने कोई भी आपके पास एक चीज़ है उसे आपने इक्वली सब में डिवाइड कर देना है. बट इक्विटी मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे फातिमा ने कहा अकॉर्डिंग टू नीड. सो एक दो स्टूडेंट ने और जिस तरह से जवाब दिया बिल्कुल कि आपने इस तरह से चीज़ों को डिवाइड करना है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हों. या दूसरे सेंस में ये कि इसी ये भी एक स्टूडेंट ने ही आंसर किया कि इस तरह से हमने चीज़ों को डिवाइड करना है कि सब एक लेवल पर आ जाए. इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ. एक शख्स है वो बहुत अमीर है और एक शख्स है वो गरीब है. ठीक है, अगर हम पैसों की बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ इतनी ज़्यादा अमाउंट है, हम उसे इक्विटी के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इक्वालिटी तो ये होगी कि हम अमीर और गरीब में इक्वली उनको हाफ हाफ करके डिवाइड कर दें उन दोनों घरों में. लेकिन इक्विटी ये होगी कि ऑब्वियसली वी नो जो गरीब है उसको ज़्यादा ज़रूरत है अमीर के बराबर आने के लिए, तो हम उसे ज़्यादा अमाउंट देंगे और अमीर को कम देंगे. दिस इज़ इक्विटी. अब दोनों इक्वल है, जिसकी जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक अकॉर्डिंग टू नीड जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है दैट इज़ इक्विटी. अभी डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे इसे. उसके बाद नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. ये बात हमारी पीएचसी की डेफिनेशन में भी मौजूद थी और यही हमारे पीएचसी का प्रिंसिपल भी है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे दैट शुड बी अप्रोप्रिएट. बहुत सारे सेंसेस में अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी
अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। देन मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच है, यानी हम जो भी काम करेंगे दैट शुड बी मल्टी सेक्टोरियल, यानी आपको पता है ना कि एक काम को करने के लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। हम हॉस्पिटल की ही एग्जांपल ले लें, एक पेशेंट की केयर करने के लिए सिर्फ एक नर्स इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें नर्सेज डॉक्टर्स का हाथ होता है, पेशेंट के अटेंडेंट का हाथ होता है, वहाँ पे हमारे साथ काम करने वाले क्लीनर्स का हाथ होता है, और प्लस एक हॉस्पिटल को रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वार्ड साइड पे काम करने वाले लोग नहीं होते या वार्ड्स नहीं होते। आपको पता है कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कितने सारे सेक्टर होते हैं जो इंश्योर कर रहे होते हैं कि हॉस्पिटल अच्छे से रन करता रहे। देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लाइक एग्जाम्पल नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, प्लस क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं, HR डिपार्टमेंट वाले हैं, और वार्ड के हेड्स हैं, ये सब लोग मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे होते। तो किसी भी काम करने के लिए ये प्रिंसिपल है PSC का कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए, यानी तमाम सेक्टर्स के लोग मिलकर काम करेंगे। और उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं पहले दिन से कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के बगैर ना तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर सकती है और ना ही हम कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। सो हर लेवल के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर हर लेवल के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। फातिमा ने एग्जाम्पल दी है, जैसे एक वॉल है और दो लोग उससे देख रहे हैं, लेकिन एक की हाइट अच्छी और जिसकी कम उसको फोकस। एग्जैक्टली ऐसा ही अच्छी आपने एग्जांपल दी फातिमा। एक शख्स की हाइट अच्छी है, वो देख सकता है, तो हम कुछ ईंटें ला के रख देते हैं और जिस शख्स की हाइट कम है वो उसके ऊपर खड़ा होकर देखना शुरू कर देगा। उसकी नीड थी ना, उसे ज़रूरत थी, हमने उसे दे दिया। लेकिन दूसरे शख्स की हाइट ज़्यादा थी, उसे नीड नहीं थी, हमने उसे वो ईंटें नहीं दी, वो ब्लॉक्स नहीं दिए। तो इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू नीड इज इक्विटी, सिंपल। ये देखिए प्रिंसिपल्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। द फर्स्ट की प्रिंसिपल इन द प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी इज इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। Health services must be shared equally by all people irrespective of their ability to pay। देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि हेल्थ की बात हो रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हो रही है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि जो आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी जिसको जितनी हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसे दें। अगर जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ लोगों के पास पैसे हैं, दे कैन अफोर्ड, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है। देखें शहरों में भी गरीब लोग मौजूद होते हैं जो हेल्थ की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट इदारों में जाके, तो वहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हेल्थ सर्विसेज हम उन तमाम लोगों के लिए जो है प्रोवाइड करें जो पे नहीं कर सकते। दिस इज इक्विटी, यानी जाहिर है जो लोग तो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पे कर सकते हैं दे कैन गो देयर, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज को जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि जी यहाँ तो सब अमीर लोग रहते हैं, ठीक है ये अफोर्ड कर लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। नो, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने होते हैं, वहाँ हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर हॉस्पिटल बने हुए होते हैं वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। जब वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती तो हमारा कौन है बेटा, नीड किसकी है? नीड है उन कम्युनिटी के लोगों की, उन रूरल कम्युनिटी के लोगों की, कि उन्हें हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है, हमें वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो रूरल कम्युनिटी में बना रहे हैं तो जी हम अर्बन कम्युनिटी में भी हॉस्पिटल बनाएंगे तभी तो इक्वल होगा। यस, देयर वुड बी इक्वालिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी चीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है दे शुड बी इक्विटेबल। हेल्थ सर्विसेज जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा प्रोवाइड करें, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम प्रोवाइड करें। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स है सारे, फूड सप्लाई की बात हुई थी, जहाँ फूड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा फूड सप्लाई करें एज़ कम्पेयर टू जहाँ ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह से सेफ वाटर सप्लाई। सो हर चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी हमारे एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया, हेल्थ एजुकेशन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, तमाम एलिमेंट्स की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तमाम एलिमेंट्स की जहाँ जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है।
Primary healthcare aims to readdress this imbalance by shifting the center of gravity of the healthcare system from cities where three-quarters of the health budget is spent to rural areas where three-quarters of the people live. Bring these services as near people's home as possible. देखिए ये कितनी अच्छी बात यहाँ पे हमने लिखी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का फोकस क्या था। प्राइमरी हेल्थ केयर में इस इम्बैलेंस को, जो ये हेल्थ सर्विसेज में हमारा इतना बड़ा इम्बैलेंस है, उसको सबसे पहले उसने रीएड्रेस किया। उसने रीएड्रेस इस तरह से किया कि जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का चेंज होना चाहिए। कहाँ से चेंज होना चाहिए? शहरों से चेंज होके रूरल एरियाज, गांव देहातों की तरफ जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। उन्होंने लिखा कि शहरों से चेंज होना चाहिए। सिटीज वो जगह है जहाँ पे तकरीबन 3/4 बजट स्पेंड किया जाता है, जबकि रूरल एरियाज वो हैं जहाँ पे 3/4 लोग रहते हैं। सो जाहिर है जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे इसका ज्यादा बजट यूज होना चाहिए ना। यहाँ तो 1/4 यूज होना चाहिए सिटीज में, जबकि 3/4 पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे सिर्फ 1/4 हिस्सा बजट का जो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बजट स्पेंड किया जाता है वो वहाँ पे स्पेंड होता है। तो एक तो इस चीज़ को हमें रियलाइज करने की ज़रूरत है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम का हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे आप शिफ्ट करें सिटीज़ से, क्योंकि सिटीज़ में लोग कम रहते हैं। जितने लोग रहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे स्पेंड करें। रूरल एरियाज़ की तरफ शिफ्ट करें। रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस हिसाब से लोग रहते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे स्पेंड करें। एक और बात लिखी कि ब्रिंग दीज सर्विसेज एज नियर पीपल्स होम एज पॉसिबल। ये जो सर्विसेज हैं आपकी, ये आप घरों के करीब लेके आइए। हेल्थ केयर सर्विसेज जिससे स्पेशली रूरल एरियाज का ये इशू होता है। देखिए सिटीज़ में तो जगह जगह हॉस्पिटल्स हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, और किसी के घर से भी दूर होंगे तो भी उतना दूर नहीं होंगे जितना किसी गांव से जो हॉस्पिटल्स दूर होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है गांवों में हॉस्पिटल्स नहीं होते यूजुअली। कोई बीमार भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको यही कहा जाता है जी उनको फलां शहर ले जाओ, फलां शहर ले जाओ। तो हमने कोशिश करनी है सबसे पहले तो यही कि जब हम अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को मूव करके रूरल एरियाज की तरफ लेके जाएंगे तो जाहिर है हम उन्हें उनके घरों के करीब कर देंगे ना। और फिर उसके बाद सेकंड हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम जितना नियर उनको घरों से करीब हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें वो उन्हें हम प्रोवाइड करें। इक्विटी इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू हेल्थ केयर बट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, बिकॉज नीड इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इक्विटी और इक्वालिटी बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हर शख्स इंटाइटल्ड है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के, मतलब हेल्थ केयर की सर्विसेज अवेल करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, नॉट देयर एबिलिटी टू पे। जो लोग हैं उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है, ये सोच कर नहीं कि ये पे कर सकते हैं जिस हिसाब से, जो कि हमारे यहाँ होता है, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप चले जाए ना बेटा, तो वहाँ पे भी अगर किसी की कोई जान पहचान है, वहाँ पे उनके कोई जानने वाले काम करते हैं, या इवन कोई बड़ी गाड़ी में बैठ के आया है, या उनको ऐसा होगा कि हाँ जी ये तो कोई अच्छे पैसे वाले लोग लग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ऐसे लोगों को तो अच्छे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, अच्छे से उनको पूछा जाता है, सब कुछ है। और ऑब्वियसली इफ दे हैव द एबिलिटी टू पे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन जो इसलिए कहा गया कि इस चीज़ को नहीं देखना कि उनकी एबिलिटी क्या है पे करने की। बेसिकली हेल्थ केयर नीड्स जो है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो हर शख्स उसके लिए इंटाइटल्ड है, और आपको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बिकॉज नीड इज़ ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि हर शख्स की जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, क्योंकि एक यही एग्जांपल ले लें, अगर जैसे एक रूरल कम्युनिटीज़ में भी डिफरेंस होगा, एक रूरल कम्युनिटी का दूसरे रूरल कम्युनिटी से भी डिफरेंस होगा, कि अगर एक रूरल कम्युनिटी है
تو ظاہر ہے وہاں پہ کون سی بیماری اسپریڈ ہو رہی ہے، کیا ضروریات ہیں ان کی وہ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے دوسری کمیونٹی ہے تو اس میں کون سی ڈیزیزز زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اسی کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں میڈیکیشن چاہیے ہوں گی، اسی کی پریونشن کے لیے ہمیں ایجوکیشن چاہیے ہوگی. سو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ اکویٹی مینس، سو ہم نے یہ کنکلوژن نکالا، اکویٹی کا مطلب ہے سروسز ٹو آل، مور سروسز ٹو نیڈی اینڈ ولنریبل. سروسز سب کو دینی ہے ہم نے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دینی. سروسز ہم نے سب کو پرووائڈ کرنی ہے، بٹ سروسز obviously مور سروسز ان لوگوں کے لیے جن کو زیادہ ضرورت ہے، جو زیادہ ولنریبل ہیں ان کو ہم زیادہ سروسز پرووائڈ کریں گے، اور جو کم جن کی نیڈس ہیں انہیں ہم کم سروسز پرووائڈ کریں گے. Such as while continuing to provide essential health care for all the population, irrespective of social, economical, and cultural preferences. Extended care is to be provided to the high risk groups in the community, either within the health center or by referral from the health centers to a higher level of care such as hospital. جیسے اگزامپل یہ ہے کہ جو ہم نے پی ایچ سی میں بات کی نا کہ ہم نے اسینشیل ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کرنی ہے، تو اسینشیل ہیلتھ کیئر سروسز ہم نے پوری پاپولیشن کو پرووائڈ کرنی ہے، بنا یہ سوچے ہوئے ارسپیکٹو آف دس تھنگ کہ یہ اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس شخص کی اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے. سوری. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس کلچر سے تعلق رکھتا ہے. ہاں ایکسٹینڈیڈ کیئر ہمیں پرووائڈ کرنی ہوگی، یعنی تھوڑا بڑھ کے ہمیں ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنی ہوگی. کن لوگوں کو؟ جو زیادہ ہائی رسک پہ ہیں، یہی تو ایکویٹی ہے، بیکاز دے آر آن ہائی رسک، سو ان کو زیادہ ہیلتھ کیئر سروسز کی ضرورت ہے. جیسے میٹرنل ہیلتھ ہو گئی، چائلڈ ہیلتھ ہو گئی، اولڈر ایج والے پیپل ہو گئے، ایسے گروپس کو ہم تھوڑی زیادہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کریں گے. ویدر آپ انہیں سمپل جو آپ کے آس پاس ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی ہیلتھ سینٹر سے ریفر ہو کے کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی طرف آیا ہے وہ پیشنٹ، اس کو آپ سروسز پرووائڈ کریں گے. اوکے، ٹائم ہو گیا اٹینڈنس کا، تو ہم نے آج تھوڑا سا ریویو کیا، اور جو ایلیمنٹس کو جو ہم نے انشور کرنا ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ایلیمنٹس کو جب ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان ایلیمنٹس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ پرائمری ہیلتھ کیئر کے پرنسپلز ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں، اسے ہم نے انلسٹ کیا، اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو پرنسپلز ہیں انہیں ہم نے فرسٹ جو پرنسپل ہے اسے ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب اس کی تھوڑی سی کنٹینیوشن باقی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسے کنٹینیو کریں گے. اور ابھی جو ہے اٹینڈنس کا ٹائم ہے، تو آپ تمام اسٹوڈنٹس رول نمبر کے ساتھ پلیز اٹینڈنس مارک کروا لیجیے.
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस भी मार्क हो गई है, और अगर आप लोग की कोई क्वेरी नहीं है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसे कंटिन्यू करेंगे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.